اجازت نہیں دے گی، کیونکہ یہ تو بے گناہ لوگ ہمارے عوام بھی ہمارے بھائی ہیں، اور یہ تو ہمارے وہ لوگ ہیں جو کہ ملک اور خاص کر اس صوبے میں امن و امان کے لیے قربانیاں بھی دے رہی ہیں، اور آج انہوں نے ایک بہت بڑی قربانیاں دی اور اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ غلام علی صاحب بتائیں کہ ابھی تک کیا تفصیلات ہیں، کتنے شہید ہوئے، کتنے اہلکار جو زخمی ہیں، دھماکہ خودکش تھا یا نہیں؟ دیکھیں انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک 28 ہمارے جوان جو ہے یہ شہید ہو چکے ہیں، اور اسی طرح تقریباً 150 کے لگ بھگ زخمی ہیں۔ جو لوگ اس میں ابھی تک ملبے کے نیچے ہیں اس کو بھی ریسکیو کر رہے ہیں، اور کچھ کو تو نکالا گیا اور کچھ کو نکالا جا رہا ہے، اس لیے ہم بھی جلدی آ گئے تاکہ وہ اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دے۔ میری ایک ہی اپیل ہے خاص کر پشاور شہر کے عوام سے، جس کا خون او نیگیٹو ہے، اگر او مہربانی کر کے ہاسپٹل میں جا کر LRH ہاسپٹل میں جا کر اپنا او نیگیٹو خون کا عطیہ دے تو یہ پورے صوبے کے عوام پر اور صوبے کے پولیس پر احسان ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ پشاور کے جوان خون دینے کے لیے پہنچیں گے۔ ابھی یہ ہے پولیس والے سارے، لیکن ابھی چونکہ ایمرجنسی ہے اور لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، ہاسپٹل میں جا کے ابھی شناخت ہوگی، لیکن واقعہ بہت دردناک اور افسوسناک ہے۔ کچھ معلومات ہیں ملبے کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں، کتنے ٹائم میں ریسکیو؟ بس انشاءاللہ 1 گھنٹے میں ہو جائے گا۔ اب کام بہت تیزی سے شروع ہے، کمشنر پشاور موقع پر ہے، باقی پولیس افسر CCP صاحب سارے بھی بچے۔ سر ذرا سا ادھر ہو جائے سر۔ اس موقع پہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ مسجد کی عمارت اور اس کی چھت گری ہوئی ہے، اس کے ملبے تلے بھی ہمارے کافی سارے جوان دبے ہوئے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ان کو ہم ایک ایسے طریقے سے ان کا ریسکیو کریں کہ ان کو کوئی زیادہ ان کی جو چوٹیں ہیں ان میں اضافہ نہ ہو۔ اس لیے اس موقع پہ ہم کوئی ڈیفینیٹ اوپینین نہیں دے سکتے، لیکن جہاں تک اندازے کا تعلق ہے تو اس سے ایکسپلوزیوز کی بو جو ہے وہ ملی ہے، اور اس کے علاوہ جب سچویشن کلیئر ہوگی، ہمیں رسائی اندر ملے گی، چھت سے تمام بندے ریسکیو ہوں گے، تو اس کے بعد ہی ہم کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ پائیں گے۔ جس وقت یہ واقعہ پیش ہے مجموعی طور پر کتنے نمازی موجود ہیں سر؟ یہ چونکہ ہیڈ کوارٹرز ہے پشاور پولیس کا، CTD کا، FRP کا، ایلیٹ فورس کا اور ٹیلی کمیونیکیشن ہیڈ کوارٹرز، تو ظہر کی نماز پہ یہاں پہ 300 سے 400 کے لگ بھگ اہلکار جو ہیں وہ نماز پہ موجود ہوتے ہیں۔ اچھا سر، یہ سیکیورٹی لیبس نہیں ہے جی؟ اس پہ وہ تو بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر پولیس لائنز میں اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے تو سیکیورٹی لیبز ہی ہوگا، لیکن یہ تفتیش کے بعد ہی ہمیں کلیئر پوزیشن پتہ چلے گی کہ مسجد کی کیا صورتحال ہے سر؟ آپریشن مکمل ہے؟ ریسکیو کا کیا سر؟ مسجد کا جو مین ہال ہے وہ ہال گر چکا ہوا ہے، وہ زمین بوس ہے۔ باقی بلڈنگ جو پیچھے برآمدے یا جو نئی بلڈنگ بنی تھی وہ قائم ہے۔ اس کے نیچے جو ہے وہ چونکہ ہال بہت بڑا ہے جس کی کیپیسٹی 250-300 کے لگ بھگ نمازیوں کی ہوتی تھی، وہ بلڈنگ گر چکی ہے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں خودکش حملہ آور بھی تھا اور بارود بھی یہاں پہ نصب کیا گیا تھا؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، جب تک ہم اس موقع پہ نہیں پہنچ جاتے وہیں سے ہمیں شواہد ملیں گے، لیکن جو جماعت کی ٹائمنگ ہے، چونکہ جماعت کے دوران یہ بلاسٹ ہوا ہے تو خودکش کے امکان کو ہم رد نہیں کر سکتے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ پشاور پولیس لائن کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس حملے کے حوالے سے کوئی تھریٹ موجود تھا؟ سر کوئی میٹنگ ہو رہی تھی سر اسپیشل؟ صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں کوئی اسپیشل میٹنگ نہیں تھی، اللہ کے ساتھ ہی میٹنگ تھی، تمام نمازی اللہ کے حضور جو تھے وہ مسجد میں جمع تھے، کوئی میٹنگ نہیں تھی، اور اس طرح کی کوئی ایک ایسی حساس کوئی کارروائی نہیں چل رہی تھی۔ تھریٹس ملے تھے سر اس کے حوالے سے؟ یہ بھی ہم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ جب تک ہال کلیئر نہیں ہوتا اس ٹائم تک ہم
एजाज खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इससे पहले गवर्नर KP हाजी गुलाम अली ने कहा कि पुरजोर मजम्मत करते इस वाक़े की 28 शहादतें हुई हैं, जबकि 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। मलबे के नीचे अब भी ज़ख्मी मौजूद हैं। उन्होंने अपील की कि O नेगेटिव खून के अतियात की अपील करते हैं। जिनका O नेगेटिव है वो आकर यहाँ पर खून के अतियात दें। ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर खान साहब, गवर्नर साहब की गुफ्तगू यकीनन आपने भी सुनी होगी, क्या कहेंगे आप? हम अपनी बात को भी कंटिन्यू करते हैं और साथ साथ जो गवर्नर साहब ने अभी गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशतगर्दों का किला कमा करने की इन्होंने एक बार फिर से बात की है, तो क्या समझते हैं आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम लोग मुकम्मल तौर पर सेफ हो सकें और अपनी आवाम को भी सेफ रख सकें? देखो ना, पुलिस खैबर पख्तूनख्वा में एक आसान हदफ है दहशतगर्दों के लिए, और लगता है कि उनकी जो अभी तक स्ट्रेटेजी है वो कामयाब है, क्योंकि पुलिस उनके लिए आसान हदफ है। और आज मस्जिद में जिस तरीके से उन्होंने बनाया है बेगुनाह लोगों को, नमाजियों को, और ख़ुद पुलिस ऑफिसर ने अभी आप जो दिखा रहे थे उसमें तस्लीम भी किया कि सिक्योरिटी लैब्स इस वक्त तक जो है वो है, लेकिन ये भी है कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारे इदारे, सिक्योरिटी इदारे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, अब उनके लिए नया चैलेंज इसलिए है कि जो दहशतगर्दी में कई सालों तक एक खामोशी थी वो दोबारा अगर उन्होंने सर उठा लिया मुज़ाकरात TTP के साथ। अब ये मालूम नहीं किया किसने ये इसके पीछे कौन है, लेकिन मुज़ाकरात चूँकि मुअत्तल है TTP के साथ, कलअदम TTP के साथ, तो अब इनको देखना पड़ेगा हमारे तमाम इदारों को। और फिर ये जो मरकज़ और सूबों में माजी में होता रहा ये जो सियासी जो इख्तिलाफ इतना ज़्यादा हो गया था कि एक दूसरे के साथ बैठ नहीं रहे थे, तो अब तो चलो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है वो नहीं रही मुखालिफिन, लेकिन ये वक्त है कि जिस तरीके से 2014 के स्कूल हमले के बाद लोग इकट्ठे हुए थे, ये मौका है और अब नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से इनको काउंटर करे, क्योंकि ये सिलसिला फिर रुकने वाला नहीं होता। तो अब हाँ हमारे इदारों पे है, हुकूमत पे है और दोनों पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप पे कि किस तरीके से नई हिकमत अमली बनाते हैं और किस तरीके से इनको काउंटर करते हैं जो नया थ्रेट आया है सामने। ठीक है, ये बताइएगा ताहिर खान साहब कि हम ये देख रहे हैं कि सिक्योरिटी लैब का जिक्र तो किया जा रहा है, इंटेलिजेंस इदारों के बाद खबरें भी होती हैं, मुल्क इंतशार की तरफ जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि बैरूनी अवामिल जो है वो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? आप किसी भी पहलू को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और ये खुदकुश हमला जो होता है ये आसान नहीं होता, ये इसके लिए बड़ी प्लानिंग होती है, बंदे को तैयार करना होता है, रेकी करनी होती है, फिर बम लाना मस्जिद में पुलिस, और बल्कि अभी पुलिस ने कहा कि यहाँ तो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का था, यहाँ पर एलीट फोर्स का मरकज़ था, यहाँ पर तो पुलिस का मरकज़ था, एक और भी उन्होंने बताया। तो अगर इतनी अहम यहाँ पर ये इमारत थी, ये मरकज़ था, तो फिर तो इन पुलिस ऑफिसर से भी पूछगिछ होनी चाहिए कि वहाँ पर जिम्मेदारी किसकी थी। और ये जो हमारे एक मसला है ना हमारे पाकिस्तान में कि वाक़या हो जाता है, बयान अब आएंगे, गवर्नर साहब जाएंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप जाएगी, इमरान खान साहब का बयान भी आ गया है, गवर्नर साहब भी चले गए, जमात इस्लामी का बंदा भी चला गया, लेकिन बयानात के चंद दिन बाद फिर खामोशी जाती, फिर ये भूल जाते हैं। तो लिहाजा ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, ये इशू अब हमारे लिए इसलिए सीरियस हो गया है, अफगानिस्तान में तब्दीली आई है, TTP अब पहले से दोबारा एक्टिव हो गई है, दीगर ग्रुप भी यहाँ पे, दाइश भी में उस तरह तो नहीं है कि जिस तरह का उनका कोई कंट्रोल लगा हो या कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो, लेकिन अब जब मालूम होगा कि क्लेम कौन करता है, जो भी क्लेम करता है उससे फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि इन लोगों के है, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि खुद को एक तो फायरिंग का वाक़या किसी को मार दे भाग जाए, लेकिन खुद को हमला फिर बहुत प्लानिंग उसके लिए चाहिए, लोग चाहिए। तो अगर उन पे ये हमला होता है और मस्जिद के अंदर होता है, पुलिस मरकज़ के अंदर होता है, CTD के अंदर होता है, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है और हमें यहाँ पर एक तस्लीम नहीं किया जाता। अपनी कमज़ोरी को तस्लीम कर, जो हमारी गलती हो उनको, वीकनेसेस को तस्लीम करें, तो फिर आप आगे जाएंगे। और ये ब्लेम गेम जो रहा है ना अभी कुछ साल 1.5 साल में, इनसे भी मेरे ख्याल में हमें, बिल्कुल आपने सही कहा ताहिर खान साहब के स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त इमरान यूसुफजई ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे ये तफसीलात ले लेते हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा कि इस वक्त धमाके की जगह पर क्या सूरत हाल है? जो मलबा मस्जिद की छत का गिरा था, क्या उसे हटा लिया गया है? जी देखिए, इसके लिए क्रेनें मंगवाई गई हैं और दीगर मशीनरी भी जो है वो बुलवा ली गई है और इसी के ऊपर काम जारी है, क्योंकि ज़राए का कहना है कि मस्जिद काफ़ी बड़ी थी और इसकी छत भी जो है काफ़ी बड़ी थी और जो मेन हॉल है
اس کی چھت بھی گری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ متصل کینٹین تھی اس کی بھی چھت گری ہے. تو بتایا گیا ہے کہ دونوں جگہوں پر چونکہ لوگ موجود تھے, مسجد کے اندر نمازی بھی موجود تھے اور اس کے علاوہ کینٹین میں بھی لوگ موجود تھے, تو ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. ڈی سی پشاور شفیع اللہ خان کا یہ کہنا ہے کہ مسجد کی جو چھت گری ہے اس کی کٹائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور اگر کچھ لوگ اس کے نیچے موجود ہیں ملبے کے تلے تو ان کو بھی نکالنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اور سب سے پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ کسی طرح سے سب سے پہلے ان جو زخمی ہیں ان کو نکال کر اسپتال منتقل کیا جائے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے. کافی افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا ہے پشاور کی. تو عمران, ابھی بھی ملبے تلے لوگ دبے ہیں, کیا آوازیں آ رہی ہیں, کوئی ایسے شواہد ہیں کہ ابھی بھی وہاں پر زخمی موجود ہیں؟ جی دیکھیے, کیونکہ اس علاقے کو مکمل طور پر کارڈن آف کر دیا گیا ہے, لوگوں کو یہاں پر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اسی طرح سے کافی بڑی تعداد میں لوگ پھر بھی اس کے باوجود یہاں پر جو ہے وہ یہاں کا رخ کر رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں یا جو پولیس اہلکار ہیں جو ان کے اپنے ہیں, پیارے ہیں, وہ یہاں پر آنے کی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا ان کے اپنے پیارے جو ہیں وہ کس حال میں ہیں, وہ ان کی تلاش میں ہیں. اور کافی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ بھی موجود ہیں. کافی مشکل ہو جاتا ہے ایسے موقع پر جو سرگرمیاں ہیں امدادی ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی تک یہ چیک کیا جا رہا ہے اور جو چھت ہے جو گری ہے اس کی کٹائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. اور ڈی سی پشاور شفیع اللہ خان کے مطابق جیسے یہ چھت کو کلیئر کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی بتایا جا سکے گا کہ یہاں پر مزید ہلاکتوں میں اضافہ ہوتا ہے یا زخمیوں کی تعداد میں. لیکن بہرحال اب تک 28 جو ہے وہ ہلاکتوں کی تصدیق کی جا چکی ہے. اور عمران, اسے خودکش حملہ قرار دیا جا رہا ہے. ابھی سی سی او پشاور نے بھی یہی کہا کہ یہ خودکش حملہ تھا. تو شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں, شواہد سے کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں؟ جی دیکھیے, شواہد جو اکٹھے کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے تاحال پولیس حکام کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا. لیکن فی الحال جو ابتدائی طور پر بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ خودکش حملہ آور ہی تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس قسم کے جب واقعات پیش آتے ہیں, چونکہ اس سے پہلے بھی ہم رپورٹ کر چکے ہیں مساجد کے اندر اس طرح کے جو واقعات ہیں. کچھ عرصہ پہلے ایک امام بارگاہ کے اندر بھی نماز کے دوران جو واقعہ پیش آیا تھا, اس میں بھی جو حملہ آور تھا وہ پہلی صف میں موجود تھا اور اس میں بھی جو ہے بتایا گیا ہے کہ پہلی صف میں موجود تھا. اور یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید امام مسجد کے بھی قریب تھا, اس لیے کہ اس واقعے میں جو امام مسجد ہیں پولیس لائن کی اس مسجد کے صاحبزادہ نور الامین صاحب وہ بھی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. تو یقیناً یہ ظاہر کیا جا رہا ہے خدشہ کہ یہ امام مسجد کے قریب ہی تھے اور پہلی صف میں موجود تھے. اور جیسے ہی نماز کھڑی ہوئی ہے 1:15 پر, جیسے ہی جماعت کھڑی ہوئی ہے اور اقامت کے فوراً بعد ہی اس نے اپنے آپ کو جو ہے دھماکے سے اڑا دیا. اور خودکش حملہ آور جب بھی کیا جاتا ہے, حملہ جب بھی کیا جاتا ہے, اس کے جو اثرات ہیں وہ ذرا اوپر کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو چھت بھی گری ہے اور چھت کے اوپر جو سائڈوں اطراف کی جو دیواریں ہیں ان کے اوپر بھی نشانات ہیں. اسی طرح سے نیچے جو مسجد میں جو لوگ آس پاس کھڑے ہوئے تھے ان کو بھی بہت زیادہ نقصان انہوں نے بھی اٹھایا. اور ساتھ ہی بات ہے کہ خودکش حملہ آور کی جو جیکٹ ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں, رکھی جاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نقصان کیا جا سکے, زیادہ سے زیادہ کیجویلٹی کی جا سکے. تو نہ صرف یہ کہ بارودی مواد اس جیکٹ میں موجود ہوتا ہے بلکہ اس میں کانچ کے ٹکڑے اور کیلیں اور لوہے کے ٹکڑے بھی شامل کیے جاتے ہیں. اور جیسے ہی یہ خودکش حملہ آور اپنے آپ کو دھماکے سے پھاڑ دیتا ہے تو یہ اس کا جسم جو درمیانی ہے یہ تو بالکل ختم ہو جاتا ہے. اس سے ٹانگیں اور سر جو ہے وہ بچتے ہیں. تو اس جسم کے حصے کے ساتھ جہاں پر جیکٹ موجود ہوتی ہے اس میں جتنے بھی جو کانچ کے ٹکڑے اور جو لوہے کے پیسز ہوتے ہیں وہ جتنی دور تک جا سکتے ہیں اور لوگوں کو ہٹ کر سکتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے. اچھا عمران, جیسے کہ خودکش حملہ ہوا ہے یہ اب یہ بات کی تصدیق ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. پولیس لائن کی مسجد میں یہ دھماکہ ہوا ہے تو یہاں پر سیکیورٹی کی کیا سچویشن ہوتی ہے عام طور پر, اور یہ جس علاقے میں یہ مسجد ہے اس کا محل وقوع کیسا ہے؟ کیا یہ کنجسٹڈ علاقہ ہے یا یہ گنجان آباد ہے؟ یہ کس طرح کا علاقہ ہے؟ کتنا آسان رہا ہوگا خودکش حملہ آور کا مسجد میں آسانی سے آنا؟ دیکھیے, آسان تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خیبر روڈ پر واقع ہے. اگر محل وقوع کی بات کی جائے تو یہ پشاور کا کافی سینسٹیو علاقہ ہے اور اسی جو مسجد ہے پولیس لائن ہے اسی ایک چار دیواری کے اندر موجود ہے. اسی کے اندر سیکریٹریٹ کی بلڈنگ ہے. اسی اسپتال سے, اسی مسجد سے اور پولیس لائن سے متصل جو ہے پولیس سروسز اسپتال ہے جس کی بیک سائڈ پر اگر ہم دیکھیں
तो इसी रोड के ऊपर खैबर रोड के साथ फोर्ट रोड जो है मुत्तसिल है, जहाँ पर सीएम हाउस भी है, गवर्नर हाउस भी है, आईजी खैबर पख्तूनख्वा की रिहाइश भी वहाँ पर है। इसके अलावा स्पीकर हाउस भी वहीं पर है और इनेक्सी भी वहाँ पर है, जो सिविल ऑफिसर मैथ है वो भी वहाँ पर मौजूद है। इसी रोड के ऊपर जो पेशावर हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी वाक़ है, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ब्रांच भी यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा इसी जो खैबर रोड है इसी के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की इमारत भी वाक़ है। तो आप अंदाजा कीजिए कि बहुत ज्यादा जो सेंसिटिव बिल्डिंग्स हैं, बहुत ज्यादा हसास इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी नॉर्मली भी जो है वो काफी सख्त की जाती है, लोगों को जो आने जाने वालों को चेक किया जाता है। और ये जिस 4 दीवारी का मैं जिक्र कर रहा हूँ जिसके अंदर पुलिस लाइन वाक़ है, यहाँ पर सिक्योरिटी की बिल्डिंग भी है। इसी 4 दीवारी की जो एंट्रेंस है जो खैबर रोड से बिल्कुल मुत्तसिल है, जिसके लेफ्ट पर मुड़ते ही जो पहला नाका आता है वहाँ पर बाकायदा लोगों को चेक किया जाता है, उनकी स्नैपचैटिंग की जाती है और उनकी शनाख्त के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद उनको अंदर जाने की और पूछा जाता है कि वो किससे मिलने जा रहे हैं और क्या उनकी मुलाकात का मकसद है। उसके बाद अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। चूंकि जाहिर सी बात है सेक्रेटरीट की बिल्डिंग है, यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन भी आते हैं, मीडिया के लोगों का आना जाना भी है। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को इस वक्त मॉस्को लिए चलते हैं, जहाँ पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सरगई लारोफ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। где подписал соглашение о взаимодействии. Before holding the talks, we received a message of another terrorist attack by a mosque in Peshawar. Several people were injured and there were victims, and we join the words of condolences, and we insist that the fight against terrorism should be more active all over the world, without any double standards and without attempts to play with the terrorist groups for the sake of achieving someone's political goals. This is what is being done quite often by some of our Western colleagues. We decided to continue the practical partnership in the anti-terrorist track, both bilaterally through the relevant work groups at the level of Deputy Ministers of Foreign Affairs, and multilaterally, first of all in the United Nations and in the Shanghai Cooperation Organization. We are satisfied with the current status of the Russian-Pakistani military cooperation. We support regular contacts between the heads of the defense ministries, the heads of the general staff, and we also conduct regular joint exercises for military training, battlefield training, including the exercises for improving the anti-terrorist capacity. We continue providing training for the Pakistani servicemen in the institutions of the Russian Defense Ministry. We also talked about the plans to build up the humanitarian, cultural and educational links. We are satisfied to note that the Pakistani universities, in particular universities of Balochistan, Peshawar and Islamabad, have expressed their interest for creating the centers for Russian language. And we continue to provide state scholarships for Pakistani citizens in our Russian universities. We have a positive outlook of the dialogue between our foreign ministries, including the dialogue within the framework of the United Nations, the global organization. This helps us find more efficient solutions for the current regional and связана с задачей устранения террористических угроз в нашем регионе. Пока, к сожалению, на территории Афганистана этого не произошло, но усилия предпринимаются, и мы условились использовать в этих целях в том числе и возможности Шанхайской организации сотрудничества, в частности, контактную группу ШОС «Афганистан». У нас обоюдная заинтересованность в развитии взаимодействия по линии ШОС. Сошлись во мнении, что это очень перспективный формат многосторонней дипломатии, многополярной дипломатии, и эффективность этой структуры подтверждается ростом интереса со стороны не входящих в нее стран к тому, чтобы теснее сотрудничать с ней и присоединяться к числу ее членов. Я поделился оценками ситуации, которая связана с последствиями курса Запада на использование Украины для развязывания гибридной войны против Российской Федерации, включая создание на наших границах прямых угроз безопасности и включая
последовательное превращение киевского режима в инструмент уничтожения всех прав русскоязычных жителей Востока и других районов этой страны. Мы выступаем за то, чтобы мировое сообщество осознало глубину происходящих явлений и со всей серьезностью отнеслось к многочисленным предложениям, которые звучали и на европейском континенте, а сейчас звучат и в глобальном контексте, о необходимости подхода к вопросам обеспечения безопасности исключительно на основе равной и неделимой безопасности для всех и каждого государств нашей планеты. Мы признательны пакистанским друзьям за их объективную, взвешенную позицию по вопросам, которые под предлогом украинского кризиса вбрасываются в повестку дня международных организаций. В целом, я считаю, визит господина министра был весьма своевременным, и у нас абсолютно четко подтвердился обоюдный настрой на дальнейшее расширение сотрудничества во всех областях. Будем продолжать поддерживать контакты. Благодарю вас, Ваше Превосходительство, министр иностранных дел Лавров, уважаемые представители СМИ, дамы и господа. Я приветствую вас. Прежде всего, хотел бы поблагодарить его превосходительство господина Лаврова. Я рад, что этот визит проходит в год, когда мы отмечаем 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между Пакистаном и Россией. На сегодняшний день мы провели подробные, продуктивные дискуссии по всем аспектам наших двусторонних отношений, а также по региональным и международным вопросам. Укрепление отношений с Российской Федерацией остается важным приоритетом для Пакистана. Считаем, что российско-пакистанские отношения служат не только нашим взаимным национальным интересам, но также делают вклад в региональную и глобальную стабильность и безопасность. Намерены углублять сотрудничество с Россией в таких областях, как торговля, экономика, безопасность. Pakistan-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economy, Scientific and Technical Cooperation was held in Islamabad. The IGC covered a wide agenda encompassing economic, trade, and especially energy cooperation. Pakistan views Russia as an important player in the West, South, and Central Asia. Pakistan and Russia have good cooperation on Afghanistan. We aim to continue cooperation with our Russian friends on realizing our common goals of peace and stability in Afghanistan. We also discussed bilateral cooperation at multilateral fora, especially within the United Nations. Cooperation on Afghanistan. We aim to continue cooperation with our Russian friends on realizing our common goals of peace and stability in Afghanistan. We also discussed bilateral cooperation at multilateral fora, especially within the United Nations and the Shanghai Cooperation. We have a firm belief that all conflicts can be resolved peacefully and that there are no obstacles which diplomacy cannot surmount. The Ukrainian conflict is no exception. Developing countries like Pakistan are facing negative consequences in terms of its economic impact. We trust that the strong tradition of diplomacy of the Russian state will help achieve a peaceful resolution of the conflict. I would like to thank once again my gracious host, Minister Lavrov, for his invitation. We hope to continue high-level contacts and reiterate Pakistan's commitment to deepening and strengthening relations with the Russian Federation. I thank you. Please, the Pakistani television. Mr. Bilawal Bhutto Zardari Sahab, this year's Pakistan and Russia are celebrating 75th anniversary of the diplomatic relations. Your grandfather Zulfikar Ali Bhutto tried to deepen relationship with Soviet Union, whereas your mother Mohtarma Benazir Bhutto and your father Mr. Asif Ali Zardari made all efforts to establish good ties with Russia.
Today, how do you see this relationship between two countries? Thank you so much for your question, particularly noting the three-generational input from my family in enhancing Pakistan-Russia relations. As the foreign minister noted, Shahid Zulfikar Ali Bhutto, when he was energy minister, foreign minister, and prime minister, worked on enhancing bilateral relations. As you mentioned, Shahid Mohtarma Benazir Bhutto in her term as prime minister made her efforts. My father, President Zardari, when he was president of Pakistan, contributed in his capacity to the enhancing of bilateral relations between Pakistan and Russia. And I'm particularly proud that as foreign minister of Pakistan, I too will now be playing my part in enhancing bilateral relations between Pakistan and Russia. The 75th anniversary of our diplomatic relations is a happy occasion, and we plan on commemorating it in a befitting manner. Our growing relations are characterized by increased pace of high-level exchanges, including the summit meeting last year in September in Samarkand, and our communication ministers visited Moscow last November for the signing of an agreement on international road transport. Our Minister of State for Petroleum have fruitful meetings in Moscow in December 2022 and on expansion of energy cooperation. And as I already mentioned, we have held a successful 8th session of the Intergovernmental Commission in Islamabad earlier this month. Also, the special representative of Russia and Afghanistan visited Islamabad. There is will and enthusiasm on both sides to not only follow up through with our existing plans for cooperation, but also to look for new vistas of cooperation for a brighter future between our two countries. Thank you. Уважаемый Sergei Viktorovich. Distinguished Minister Lavrov, previously there used to be 2 direct flights between Moscow and Karachi. Are you discussing the possibilities of renewing the flights between the 2 countries? Yes, we are discussing the possibility of renewing the flights between the relevant authorities, the civil aviation authorities of Russia and Pakistan. As you know, we attach special importance to the commercial component, and we are considering this matter. Thank you. The next question from Lenta.ru. Valentina Schwartz. Good afternoon. I have a question for each of the ministers. A question for Minister Lavrov. The partnership in the SCO is one of the most important tracks of cooperation between Russia and Pakistan, and many countries are expressing their interest in joining this organization. Could you tell which countries could enter the SCO this year, and are you expanding the list of the candidates for membership in the organization? Perhaps there are some new countries. And a question for the Minister of Foreign Affairs of Pakistan. In the previous weeks, Russia and Pakistan have been actively talking to sign a deal on the oil supply. When can we expect the signing of the deal? And has Pakistan managed to receive guarantees from the United States that they would not block the deal or introduce the secondary sanctions? And what currency will be used to pay for the Russian oil? Thank you very much. As for the question regarding the expansion of the Shanghai Cooperation Organization, we are expecting the membership of the Islamic Republic of Iran as a full-fledged member, and we have also started the official procedures for the Belarus for joining the organization, and there is a number of countries who have received the status of the dialogue partner, including numerous Arab countries. The list is in open access and you can see it for yourself. The question, indeed, we've had and continue to have detailed conversations on energy cooperation between Pakistan and Russia. As you may be aware, Pakistan faces severe energy crises and problems. We are faced with exorbitant import bill as far as hydrocarbons are concerned, and I am expecting positive progress on our discussions between Pakistan and Russia on energy cooperation. The recent visit to Pakistan also, I've received incredibly positive feedback on the topic.
And it's far for other countries, I expect them not to interfere in the bilateral relations between Pakistan and Russia. We absolutely will do whatever is necessary to provide our people with the necessities that they require. The people of Sindh, the people of Balochistan, the people of South Punjab, the people of South Pakhtunkhwa were devastated by the most historic climate catastrophe that we have ever witnessed in the floodings that we faced last year. As a result of that, we have severe economic challenges that Pakistan are facing at this point in time, and we will certainly do whatever we can to alleviate, to reduce the difficulties that the poor people of Pakistan are facing. Пожалуйста, известия. Известия agency, please. Good afternoon. I have a question for both ministers. What is the status on the construction of the Pakistani stream, and when will we see the implementation of the agreements? Let me start, if I may. We've already said that this is a matter that was discussed during the Intergovernmental Commission session on the Trade and Economic Cooperation, which took place 10 days ago in Islamabad. We are currently in the advanced stages of work on the agreement, and I am sure that in the near future we will see more progress. And on this matter, I would like to talk in more detail about what was mentioned in the question for my colleague regarding the guarantees of the United States that they would not interfere with our energy deals. They will make obstacles, I'm sure, since the United States has no shame and they act in a very arrogant manner and saying to everyone that they should not deal with Russia. There were recently threats for China as well as India and Turkey. There is essentially no country which hasn't received such neo-colonial messages from the United States. But at the same time, the vast majority of the countries, including our friends from Pakistan, as mentioned once again by my colleague, are first of all guided by their legitimate national interests, the interests of developing their own economy, the interest of helping their people, providing them with all the necessities, including energy. But we know what actions can be used by our Western colleagues. These are not only the threats of secondary sanctions, they also resort to terrorist attacks, as it happened with the explosion of the Nord Stream and Nord Stream 2. Remember, as soon as that happened, an hour or two later, the former Minister of Foreign Affairs of Poland, Mr. Sikorski, immediately wrote a tweet saying thank you to the United States of America. He quickly removed the tweet, but as it turns out, the truth cannot be hidden. And recently speaking in Congress, Madam Victoria Nuland, the Deputy Secretary of State, said that last year numerous senators and she personally and the State Department were happy to note that the Nord Streams had turned into a pile of metal at the bottom of the Baltic Sea. This is quite a ridiculous confession. But what's even funnier is the words of Mr. Olaf Scholz in his interview that was released yesterday in one of the German newspapers. He was asked when the investigation would be over, and he said that the explosions took place in the waters of Sweden and Denmark, that the investigation was difficult and it was still going on, and in countries that respect the rule of law, like Germany, the officials shall refrain from any suppositions and only speak out when they have the solid proof. That was a quote from Olaf Scholz. Let me draw your attention to the fact that no one was even thinking of following the advice of Mr. Scholz and the principle, which is valid in all the states,
the majority of the countries of the European Union, under the pressure from the United States and United Kingdom, were introducing sanctions for the so-called poisoning in Salisbury, for which there was no proof, and dozens of our official requests through the international conventions were simply ignored in connection with this case. And Germany was also not cooperating with us on the supposed poisoning of Alexei Navalny. There were no documents which could confirm the accusations that they made against us in regards to this poisoning. And I really hope that Germany, guided by the principles of rule of law, will follow its principles in reality. And the United States as well, I hope, will comply with international law in accordance with their role in the global arena. Energy cooperation, the unity government in Pakistan is committed to meet the needs, the energy needs and other needs of the people of Pakistan, come what may. We've had detailed discussions on this, and we're hoping to see progress as far as interference is concerned. Mr. Minister, many foreign ministers will stand next to you and perhaps emphasize the divisions internationally. Pakistan sees itself as a bridge builder. We want to see cooperation regionally, internationally, and even between the great powers. We value our relationship with Russia. We don't see it as contingent to developments in international relations. We equally value our relationship with the United States and with Europe. Pakistan will consistently be a voice for peace, dialogue, and diplomacy in the international community. We have consistently advocated for a peaceful resolution to these disputes that obviously affect the people of Russia, affect the people of Ukraine, affect the people of Europe, affect the people of America, but also affect the people in the developing world. And we are hopeful that dialogue and diplomacy will prevail over polarization and conflict. And the final question from the Sputnik agency. Good afternoon, Ksenia Shikalova, Sputnik Information Agency. I have a question for both ministers. According to the official statements, the meetings of the group of the Afghanistan neighbors at the ministerial level will take place in the first quarter of this year. Do you have the date and the venue for this ministerial meeting, and what are the matters that will be discussed during this meeting? And at this point, do we have an understanding regarding the creation of an inclusive government in Afghanistan, as declared by the global community as a condition for the official recognition of the current Taliban authorities in the country? Thank you. Well, in order to be more specific, let me note that the establishment of an inclusive government in Afghanistan is not a condition stated by the international community. This is a commitment that was stated by the Taliban itself as they came to power in Afghanistan. They said that the establishment of an inclusive, multi-ethnic government would be one of their goals, and the global community naturally expects them to comply with their commitment. This, along with other matters, will be of principal importance for the international legal recognition for this government. At the same time, the lack of an agreement at this stage is not considered as an obstacle to build up cooperation and full-fledged dialogue with Kabul, with the Taliban, including dialogue to promote the establishment of an inclusive order and government that you mentioned. This topic, as well as the matters related with overcoming the issues in and around Afghanistan, is discussed at numerous events, and Russia makes its contribution and organizes meetings within the so-called Moscow format. Another meeting took place last autumn, and our friends in Uzbekistan also express
their active interest, and the format of Afghanistan neighbors is exactly the right format that they want to promote. Similar topics are promoted in similar formats of Afghanistan neighbors by the representatives of the People's Republic of China. The meeting is expected to take place in the first quarter of this year, that's right. As for the venue for the meeting, this will be announced later, and we will be ready to share this information with you as soon as we have it. And together with our colleagues from Pakistan, we have good cooperation in this track. As far as Afghanistan is concerned, I think that Russia and Pakistan have a lot in common in the way we view things. And I absolutely endorse what the foreign minister is saying. Whether it is the issue of an inclusive government, whether it is the issue of terrorism, whether it is the issue of rights, these are not prerequisites or demands from our side. These are promises that the interim government of Afghanistan made with the international community. These are promises that the interim government of Afghanistan made with their own people. And I believe that it would help us help them if they were to fulfill their commitments to their own people. Спасибо. Thank you. Thank you. بلاول بھٹو زرداری روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے ساتھ میں مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پاکستان اور روس مختلف عالمی فورمز پر مشترکہ موقف رہتے ہیں. یہ کہنا ہے سرگئی لاروف کا. پاکستان اور روس کا SCO میں تعاون سے متعلق یکساں موقف ہے. افغانستان میں قیام امن کے لیے پاک روس کاوشیں جاری رہیں گی. پاکستانی ہم منصب سے باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا ہے. پرتپاک استقبال پر روسی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا. انہوں نے کہا کہ پاک روس تعلقات کے حوالے سے دو طرفہ اور علاقائی استحکام کے لیے انتہائی اہم ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے GTV نیوز. سپر. تم قدم بڑھاؤ, منزل ہم دلائیں گے, کیونکہ ہمیں ہے تم پہ یقین. پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم کے تحت 18 سے 45 سال کے مرد, خواتین, خصوصی افراد اور ٹرانسجینڈرز کے لیے کاروبار کے آغاز اور توسیع کے لیے 75 لاکھ تک کے سبسڈائز قرضہ جات, 5 لاکھ تک کے لون بغیر کسی مارک اپ. پہلی بار زرعی کاروبار بھی اسکیم میں شامل. 25% قرضہ جات خواتین کے لیے مختص. قرض کی واپسی 8 سال کی آسان اقساط میں. قرضے کے حصول کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی ویب سائٹ www.pmyp.gov.pk پر آن لائن درخواست دیں. پرائم منسٹرز یوتھ لون اسکیم. جب آگے بڑھیں گے نوجوان تو خوشحال ہوگا پاکستان. آؤ کر دکھائیں. GTV ہیڈ لائن نیوز کے لیے تعاون کیا ہے سرف ایکسل, داغوں پر سخت, کپڑوں پر نرم. السلام علیکم. GTV نیوز کے خصوصی ریجنل بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رباب اسد. سب سے پہلے ہیڈ لائنز.
पेशावर में क़यामत सुग़रा, पुलिस लाइंस की मस्जिद में नमाज ज़ोहर के दौरान खुदकुश धमाका, 28 नमाजी शहीद, मज़ीद शहादतों का खदशा। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावर नमाजियों की पहली सफ में खुद को उड़ाया। 140 से ज़ायद ज़ख्मी लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल, 13 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक। पेशावर धमाके के वक्त नमाजियों की बड़ी तादाद मस्जिद में मौजूद थी। धमाके से मस्जिद की छत गिर गई। ज़्यादातर नमाजी मस्जिद की छत के मलबे तले दबकर जख्मी हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कई अफराद अब भी मलबे तले दबे हो सकते हैं। पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। लेडी रीडिंग अस्पताल इंतजामिया की शहरियों से खून के एहतियात देने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की पेशावर में खुदकुश धमाके की मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों का सरगर्म होना इंतहाई ख़तरनाक है। हुकूमत दहशत गर्दी की नर्सरियों को तबाह करे। ज़िमनी और आम इंतख़ाबात से कबल दहशत गर्दी की वारदातें बाइस तशवीश हैं। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। तहसील कोलाची में ऑपरेशन में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 2 अहम कमांडर मारे गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और पुलिस टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का मफरूर दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सोआबी में पुलिस और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। खुदकुश हमलावरों ने खुद को हैंड ग्रेनेड से उड़ा लिया। रात भर दहशत गर्दों का मुहासरा जारी रहा। सुबह दहशत गर्दों ने हैंड ग्रेनेड चला दिए। कार्रवाई में एक दहशत गर्द भी गिरफ्तार। कोहाट में तांडा डैम सानेह में जाँ 11 बच्चों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। जनाजे के मौके पर रिक़्क़त आमेज़ मनाजिर दिखाई दिए। नमाज जनाजा में स्टेशन कमांडर IG कोहाट समेत इलाका आवाम की शिरकत। तांडा डैम में ऑपरेशन जारी। मज़ीद 8 तलबा की लाशें बरामद। जाँ बहक बच्चों की तादाद 19 हो गई। मतरूका वक्फ अमला का बड़ा एक्शन। शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली सील। ऑपरेशन में पुलिस और FIA ने भी हिस्सा लिया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ अमला का आसिफ खान ने FIA और पुलिस की भारी नफरी के साथ हवेली के 2 यूनिट समेत 7 एराजी यूनिट्स सील कर दिए। मतरूका वक्फ अमला की जानिब से शेख रशीद को लाल हवेली खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। डीजल की कीमत बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी हाथ साफ करने शुरू कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में बैनुसूबाई बस सर्विस के किराए में मन माने इजाफे का सिलसिला जारी। शहरों में चलने वाली ट्रांसपोर्ट भी अब महंगी हो गई। महंगाई का नया रेला आ गया। और मुल्क के बालाई और शुमाली इलाकों में बर्फबारी। मलका कोहसार, मरी और गिलियात में सयाहों की मौजें। शुमाली बलूचिस्तान में 2 दिन से जारी बर्फबारी से शहरियों को मुश्किलात। आज़ाद कश्मीर की वादी अलीपा के कई इलाकों में 10 साल बाद बर्फबारी। पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश से जाती सर्दी लौट आई। करेला ऑफ। दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो जल्दी खा कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। नया सर्फ एक्सेल, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। नया सर्फ एक्सेल। मम्मा सिर्फ एक बाइट खाऊंगा, नहीं तो कूद जाऊंगा। जानती वो भी थी मेरी धमकियां झूठी हैं। ये उसकी ममता ही तो थी जो डर जाती थी। शेर क्या खाते इतने पावर्स के लिए? पराठा। ये उसकी ममता ही तो थी जो मेरे लिए शेर को भी पराठा खिलाती थी। आज भी कुछ भी तो नहीं बदला। बस शेर की जगह स्पाइडरमैन ने ले ली और पराठे की जगह पास्ता ने। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम। जहाँ ममता वहाँ डालडा।
वीकली एक्सट्रीम ऑफर 40 GB डेटा, 200 अदर नेटवर्क मिनट, 7,500 टेलीनॉर प्लस BTCL मिनट्स और SMS 7 दिन के लिए। अंदर की अच्छाई को बाहर झलकने दो। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। आपका फेवरेट सनसिल्क शैम्पू अब हुआ और भी बेहतर। इसमें है विटामिन्स, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स का सुपर मिक्स जो दी आपको शाइनी, घने और खूबसूरत बाल। सुपर बाल हर बार नई सनसिल्क सुपर मिक्स के साथ। इलाकाई बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पेशावर में होने वाले धमाके की। पेशावर में पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ। नमाज ज़ोहर अदा करते हुए 28 से ज़ायद नमाजी शहीद हो गए। 140 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मलबे तले दबे अफराद की मदद के लिए चीखो पुकार। ज़ख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अस्पताल की जानिब से खून के अतियात देने की अपील कर दी गई। दहशतगर्दों ने पेशावर को एक बार फिर खाक को खून में नहला दिया। मुल्क दुश्मनों ने एक बार फिर आसान हदफ मस्जिद को निशाना बनाया। पुलिस लाइन मस्जिद में धमाका 1:16 पर हुआ। आवाज दूर दूर तक सुनी गई। धमाके के वक्त मस्जिद में ज़ोहर की नमाज अदा की जा रही थी। धमाके की शिद्दत से मस्जिद का एक हिस्सा शहीद, छत मुनहदम और खिड़कियों के शीशे टूट गए। मुतादिद नमाजी छत के मलबे तले दब गए, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने निकाला। मस्जिद पेशावर के हसास तरीन इलाके में वाक़ है, जिसके करीब CTD और FRP पुलिस हेडक्वार्टर है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में ले लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमला खुदकुश बमबार पहली सफ में खड़ा था। जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां अपने प्यारों की तलाश में आने वालों का रश लग गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हमलावर थाने के मरकजी दरवाजे से दाखिल होकर 3 से 4 हिफाजती लाइन अबूर करके मस्जिद तक पहुंचा। 28 अफराद शहीद हो गए, जबकि इस वक्त आपको अपडेट करें कि 120 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। इमरान यूसुफजई ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी इमरान, बताइए इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी देखिए, 28 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में अब तक जान पे शहादत के हैं, जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हैं और अस्पतालों में मौजूद है। इस वक्त भी जो मस्जिद है पुलिस लाइन के अंदर, उसकी एक छत जो गिरी हुई है उसकी कटाई का काम जो है वो जारी है। और पेशावर शकीला खान कि जैसे ही कटाई का अमल मुकम्मल होगा, इसके लिए भारी मशीनरी और क्रेनें जो है मंगवाई गई हैं, और जैसे ही मुकम्मल होगा इसके बाद अंदाजा लगाया जा सकेगा कि आया इस मलबे के नीचे भी हलाक अफराद जो है वो मौजूद हैं। मलबे के नीचे भी मजीद ज़ख्मी मौजूद हो सकते हैं, ऐसा खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। नमाज ज़ोहर अदा करते हुए 28 से ज़ायद नमाजी शहीद हो गए हैं, जबकि 140 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जिन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दीगर अस्पतालों में भी ज़ख्मी मौजूद हैं, जबकि बड़ी तादाद जो ज़ख्मियों की है वो लेडी रीडिंग अस्पताल में है। अस्पताल इंतज़ामिया ने खून के अतियात की आवाम से अपील की है और आवाम भी अस्पताल पहुँच रहे हैं ताकि वो खून के अतियात दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जानों को बचाया जा सके। एक बार फिर आपको बताएंगे कि पेशावर में धमाका हुआ एंड उस वक्त जब नमाज ज़ोहर अदा की जा रही थी, धमाका खुदकुश बताया जा रहा है और खुदकुश हमला आवर पहली सफ़ में खड़ा था। धमाके के बाद की जो सूरत हाल है वो GTV न्यूज़ अपने नाजरीन तक पहुँचा रहा है लम्हा ब लम्हा। इमरान यूसुफजई से मज़ीद बात करेंगे। जी इमरान, बताइए।
आज देखिए, आज इस अफसोसनाक वाक़े में अब तक 28 अफराद के बारे में बताया गया है कि जाम शहादत नोश कर चुके हैं, जबकि 100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जख्मी हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है अस्पतालों। और आज 1:15 बजे के वक्त पुलिस लाइन है इसकी मस्जिद में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और खुदकुश हमलावर जो कि मस्जिद की के अंदर मौजूद था इस मरकजी हॉल में और पहली सफ में मौजूद था और जैसे ही अकामत हुई और नमाज जो है वो बाजमात खड़ी हुई, उसके साथ ही उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में अब तक 28 अफराद की शहादत की जो है वो कंफर्मेशन की जा चुकी है, जबकि 100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जख्मी हैं और जख्मी के बारे में बताया गया है कि उनमें से कई हैं कि जिनकी हालत तशवीशनाक है। ये बताया गया है कि सिक्योरिटी के हवाले से भी खदशात मौजूद थे और जाहिर सी बात है कि जितनी हसास जगह पर ये पुलिस लाइन वाक़या है, ये खैबर रोड पर वाक़या है और इसके महल वकूफ़ के अतराफ में अगर देखा जाए तो सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग भी है, पुलिस लाइन सर्विसेज अस्पताल भी है और इसके अलावा इससे कुछ ही फासले पर सीएम हाउस भी है, गवर्नर हाउस भी है और दीगर जो हसास इमारतें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और असेंबली भी यहाँ से करीब है और इसी खैबर रोड के ऊपर वाक़या है। और उसके बावजूद एक अफसोसनाक वाक़या पेश आना और दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या कि जिसमें कई जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए हैं। और अब ये भी बताया जा रहा है ज़राए से कि शायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ जो है वो विजिट करें पेशावर का, चूँकि अब तक ये कंफर्मेशन नहीं है लेकिन बहरहाल ये इत्तला बताई गई है। ज़राए का ये कहना है कि शायद वो विजिट करें पेशावर के इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद और दौरा करें। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि पीटीआई के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनकी जानिब से विजिट किए गए हैं पुलिस लाइन की जानिब और जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है मुश्ताक गनी और साथ ही साथ जो शौकत यूसुफजई हैं उन्होंने भी विजिट किया है और उन्होंने बात भी की है और उनका ये कहना था अपनी गुफ्तगू में मीडिया के साथ के सूबे में पहले अमन अमान था और अब दोबारा दहशतगर्दी शुरू हो गई है। स्पीकर मुश्ताक गनी का ये कहना था और उनका ये कहना था कि धमाके में 200 जो है अफराद जख्मी हुए हैं और मलबे तले अब भी अफराद जो है वो मौजूद हैं, बताना है शौकत यूसुफजई का। और उनका ये कहना था कि निगरान हुकूमत मुकम्मल फोकस सिक्योरिटी और अमन अमान पर उनको रखना चाहिए। तो वाला सियासी जो रहनुमा है उनकी भी विजिट का सिलसिला जारी है और अब ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी के हवाले से जो मस्जिद है उसके नीचे जो छत जो मुनंदम हुई है उसके नीचे भी कुछ अफराद की मौजूदगी की इतलात हैं, जिसके लिए भारी मशीनरी मंगवाई गई है और इस जगह को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। इमरान यूसुफजई, जैसे कि आपने बताया कि ताज़ियत का इजहार भी किया जा रहा है मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से और हुकूमत की जानिब से भी, लेकिन क्या लेडी रीडिंग अस्पताल जहां सबसे ज़्यादा ज़ख्मियों को लाया गया वहां पर किसी हुकूमती ओहदेदार ने विजिट किया, अब तक वहां पहुंचे हैं? आज देखिए, अभी तक इस हवाले से बताया गया कि किसी वहाँ पर विजिट नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल चूंकि सिक्योरिटी के भी हालात ऐसे हैं और अब से कुछ देर पहले कुछ आधा घंटा पौना घंटा पहले इस तरह की भी एक इत्तला थी कि शायद LRH के अंदर भी कोई खुदकश हमलावर जो है वो दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी भगदड़ मची और वहाँ पर भी सिक्योरिटी के जो है मजीद इंतजाम को सख्त कर दिया गया है। डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, तिब्बी अमला वहाँ पर मौजूद है और जो जख्मी हैं उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। तमाम सिक्योरिटी के खदशात के पेश नज़र शायद अब तक वहाँ पर किसी हुकूमती शख्सियत की जानिब से विजिट नहीं किया गया, लेकिन अब ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि शायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या शहबाज शरीफ शायद पेशावर का विजिट करें। और आज यकीनन पेशावर के लोगों के लिए, पेशावर के लिए एक अफसोसनाक दिन है। कई घरों में सफ़े मातम बिछ गई है और ये बहुत बड़ा और अफसोसनाक वाक़या है कि सिक्योरिटी एक ऐसी जगह के जो शहर को सिक्योरिटी फराहम करने की जिम्मेदार है और वहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स का होना यकीनन ये एक सवालिया निशान है और इसके ऊपर भी तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई है। शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, जो है वो हुआ है वहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया गया है और वहाँ पर लोगों को पहुँचने की इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन उसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में वहाँ का रुख कर रहे हैं और अपने प्यारों को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पर मौजूद हैं या उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब्दुल रहमान ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। जी अब्दुल रहमान, बताइए कि इस वक्त आप क्या मनासिर देख रहे हैं वहाँ पर और क्या ये मालूम हो सका है कि जितने जख्मी हैं और जहाँ बहक हुए हैं उनमें से पुलिस एहलकारों की तादाद कितनी है? जी अब्दुल रहमान, आपको हमारी आवाज़ आ रही है?
अब्दुर्रहमान से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश धमाका, जिसके हवाले से अपडेट हासिल कर रहे हैं इमरान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, आप बताइएगा कि ज़्यादातर तादाद बताई जा रही है कि पुलिस एहलकार और पुलिस अफसरान वहाँ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो जो जाँ बहक हुए हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनमें पुलिस वालों की तादाद कितनी है? जी देखिए, इस वक्त अब तक हतमी तादाद तो नहीं बताई गई, लेकिन चूंकि ये पुलिस लाइन के अंदर मस्जिद वाक़ है तो यहाँ पर ज्यादा तादाद जो है वो पुलिस एहलकारों की ही बताई जा रही है। अब तक जो नाम आए हैं उसमें से 13 से 14 नाम ऐसे हैं जो पुलिस एहलकारों के हैं और मुख्तलिफ जो है वो उनके रैंक हैं, और एक SP ज़मान के बारे में भी बताया गया है कि वो भी इसमें जाम शहादत उन्होंने नोश किया है। कुछ और जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनके भी नाम हैं। और अफसोसनाक तो पहलू इसका ये है कि इसकी अतराफ की जो लोग सरकारी इमारतें हैं वहाँ की भी अक्सर सरकारी मुलाजमीन इसी मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए आते थे, क्योंकि पुलिस लाइन के अंदर ये मस्जिद वाक़ है और काफ़ी बड़ी मस्जिद है, और नॉर्मल हालात में भी आम दिनों में भी 100-150 से ज़ायद लोग जो है यहाँ पर नमाज की अदायगी के लिए मौजूद हुआ करते थे। रोज़ाना तकरीबन 100 से 150 लोग यहाँ पर नमाज अदा करते हैं, क्योंकि इंतहाई हसास इलाका है और आसपास जो इमारतें हैं वो ज़्यादातर सरकारी इमारतें हैं, तो मस्जिद में आने वाले ज़्यादातर सरकारी मुलाजमीन हैं। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पुलिस लाइन में ये मस्जिद वाक़ है, तो पुलिस एहलकारों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर नमाज अदा करने आती है, और ज़ख्मियों और जाँ बहक होने वालों में खासी तादाद जो है वो पुलिस एहलकारों की भी है। और अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। जी अब्दुर्रहमान, बताइए इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, पेशावर पुलिस लाइन के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर धमाका हुआ था, फौरन आप किया हुआ है। इसके अलावा पुलिस लाइन का जो मेन गेट है वो बंद कर दिया गया है और यहाँ पर किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियल है और सियासी रहनुमा है वो अंदर जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। और अब तक CPO पेशावर विजिट कर चुके हैं। साबिक स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी और शौकती सब्ज़े कुछ देर पहले का विजिट उन्होंने किया, और मुश्ताक गनी का कहना था कि अब भी मलबे तले जो है वो 5 अफराद जो है वो दब चुके हैं, जिनको निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टैंक भी जो है वो भी बुलाया गया है। इसके अलावा भारी जो मशीनें हैं जाने से यहाँ पर तलब की गई है। ऑपरेशन अभी जारी है और हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंसेज भी यहाँ से निकल रहे हैं। जो जख्मी अफराद है उनको अब भी पेशावर के लेडरिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। लेडरिंग अस्पताल से अगर जो वहाँ पर आदाद शुमार है तो अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक 32 जो है वो अफराद शहीद हो चुके हैं। जबकि अच्छा अब्दुर्रहमान, ये बताइए कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है, मलबा सारा हटा लिया गया है, मलबे के तले जो जख्मी मौजूद थे क्या उन सबको निकाल लिया गया है या अब तक ये सिलसिला चल रहा है? ये ऑपरेशन अभी जारी है। भारी मशीनरी जो है वो यहाँ पर मंगवाई गई है। कई क्रैंक जो है हम देख रहे हैं कि अंदर गई है और जो ऑपरेशन है वो जारी है। और क्योंकि मस्जिद का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर गिर चुका है, काफी एक बड़ा मस्जिद है और को हटाने के लिए भारी मशीनें दरकार होती है, तो ये वजह कि अब मशीनरी यहाँ पर बुलाई गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि मुताबिक जो अपराध है वो मस्जिद दब चुके हैं, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि रेस्क्यू की जो टीमें हैं, एम्बुलेंस है, वो यहाँ पर जा रहे हैं। जो जख्मी अफराद है उनको अब भी अस्पतालों को मुंतकिल किया जा रहा है। पेशावर की लेडरिंग अस्पताल में अब तक तर्जुमान के मुताबिक 147 से ज्यादा जो जख्मी है वो लाए गए हैं, जबकि 32 जो डेड बॉडीज है वो पेशावर लेडरिंग अस्पताल मुंतकिल की गई है। इसके अलावा पेशावर की जो 2 बड़े अस्पताल है, वहाँ की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो जख्मी अपराध है वो मुंतकिल किया गया है। हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 5 जख्मी, जबकि सेवर टीचिंग अस्पताल में जो जख्मी अच्छा, मेडिकल कॉम्प्लेक्स का भी आप जिक्र कर रहे हैं और दूसरी जानिब लेडी रीडिंग अस्पताल भी है, तो दोनों अस्पतालों से क्या रिपोर्ट हुआ है, क्या तफसीलात सामने आई हैं कि अब तक मजमूई तौर पर कितने अफराद शहीद हुए हैं और जख्मियों की मजमूई तौर पर क्या तादाद सामने आ रही है? देखिए, पेशावर लेडरिंग अस्पताल क्योंकि बहुत नजदीक है जहाँ पर ये धमाका हुआ है, तो ज्यादातर जो जख्मी अफराद है या जो डेड बॉडीज है वो वहाँ पर मुंतकिल की गई है। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक 32 अफराद जो है वो शहीद हो गए हैं, जिनकी डेड बॉडीज इलाज मुंतकिल की गई है, जबकि जो जख्मी अफराद 147 जख्मी अफराद पेशावर लेडरिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसके
पेशावर हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में 5 जख्मियों को मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा खैबर टीचिंग अस्पताल में अब तक तर्जुमान के मुताबिक एक जख्मी जो है वो लाया गया है, जबकि मजीद अभी कहा जा रहा है कि इत्तलात है कि जो मलबा है उसके तले अभी जख्मी मौजूद है, जिनको निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। और यहाँ पर जो ऑफिशियल है वो विजिट कर रहे हैं। और जो साबिक अब्दुल रहमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, अपने नाजरीन को अपडेट करें। इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में इस वक्त की इतलात के मुताबिक 32 अफराद शहीद हो चुके हैं। नमाजी जो नमाज अदा करने गए थे जोहर की, और ऐन नमाज जोहर के दौरान एक खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 140 से ज़्यादा अफराद जो है वो ज़ख्मी हैं। और अभी अगर ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 32 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हलाकतों का सिलसिला जारी है, जाँ बहक अफराद की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। काफ़ी ऐसे ज़ख्मी भी मौजूद हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अस्पताल में खून की शॉर्टेज हो गई है, और उसके बाद उन्होंने अस्पताल इंतज़ामिया ने खून के एहतियात की अपील की है, और आवाम की बड़ी तादाद अस्पताल पहुँच कर खून के एहतियात दे रही है ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके। जी अब्दुल रहमान, बताइए जख्मियों में कितने ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है? जी बिल्कुल, जो अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक मुतअद्दिद ऐसे जख्मी है जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रहे हैं, जबकि कई ऐसे भी है जिनकी हालत जो है वो ठीक है। कई जो जख्मी है वो अस्पताल से फारिग ठीक हो चुके हैं, जबकि भी जख्मी है जिनका इमरजेंसी में इलाज के बाद उनको मुख्तलिफ जो वार्ड है वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। जबकि जो तशवीशनाक हालात है, मुतअद्दिद ऐसे जख्मी है जिनकी हालत तशवीशनाक है, तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। जबकि मैं ये बताता चलो साथ साथ से कि अब भी जो ऑपरेशन है जारी है। जो मलबे तले दबने वाले जख्मी अफराद हैं उनको निकालने का सिलसिला जारी है। तो जख्मी जो अफराद हैं उनकी तादाद में भी मजीद इजाफा हो सकता है। ये भी सकता है कि जो मलबे तले दब चुके हैं, जो रह गए हैं और अब ऑपरेशन जारी है, तो उनमें से ज़्यादा जो है वो जान बहक हो चुकी होगी। लेकिन ये बताना भी खबर वक्त है कि ऑपरेशन जारी है, और यहाँ पर जितनी भी जख्मी अफराद है उनको निकाला जाता है। तो फिर अब्दुल रहमान हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई की तरफ चलेंगे। इमरान, ये बताइएगा कि जो बतदरीज हम देख रहे हैं कि जो जाँ बहक अफराद की तादाद है उसमें इजाफा होता जा रहा है, तो ज़्यादातर जो शहादतें हुई हैं उसमें क्या मालूम चल सका है कि मलबे के तले दबकर लोग ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, या फिर धमाका खेज जो मवाद था उसमें बॉल बेयरिंग्स और कुछ ऐसे अनासिर शामिल किए गए हैं जिसकी वजह से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है? इब्तिदाई तफसीलात क्या सामने आई हैं? और देखिए, अमूमन इस तरह के जब भी वाकयात पेश आते हैं तो खुदकश हमलावर, जैसे कि इससे पहले भी मैंने बताया कि खुदकश जैकेट के अंदर न सिर्फ बारूदी मवाद होता है बल्कि बहुत सी और भी खतरनाक चीजें और जो नुकसान देने वाली चीजें हैं वो मौजूद होती है। इसमें कांच के टुकड़े होते हैं, इसमें लोहे की कीलें होती हैं, लोहे के टुकड़े छोटे छोटे इसके अंदर जो है वो शामिल किए जाते हैं ताकि जिस वक्त ये धमाका होता है तो वो जितनी दूर तक उनकी रसाई हो वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सके। तो इस वजह से भी नुकसान जो है खुदकश के हमले में ज्यादा होता है। और साथ ही साथ फिर चूंकि जाहिर सी बात है मस्जिद है, जोहर की नमाज का वक्त था और नमाज में जाहिर सी बात है कि हम करीब करीब खड़े होने को तरजीह देते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। इमाम साहब भी हमेशा बताते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, तो बहुत करीब करीब लोग खड़े होते हैं, तो वो दरमियान में इतना फासला भी नहीं होता। और जाहिर सी बात है कि जैसे ही नमाज शुरू हुई है, कामत के फौरन बाद ही इस खुदकश हमलावर ने अपने आप को धमाके से उड़ाया है, जिसकी वजह से इसमें हलाकतें भी ज्यादा हैं और नुकसान भी ज्यादा हुआ है। फिर जाहिर सी बात है मस्जिद चूंकि बड़ी है, छत गिरने की वजह से भी जो है काफी लोग मलबे के नीचे दबे होंगे, और फिर एक अफरा तफरी और जो इधर हल्ला गुल्ला हो जाती है, लोग घबरा कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उसमें भी जो है लोगों के जख्मी होने के इम्कान ज्यादा होते हैं। लेकिन बहरहाल ज्यादातर नुकसान जो है वो खुदकश हमलावर बिल्कुल भगदड़ मसले से भी काफी अफरा तफरी फैल जाती है। इमरान यूसुफजई और अब्दुल रहमान दोनों हमें अपडेट करें, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक दफा फिर बताएं कि आप इस वक्त GTV न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं दोनों जगह के ये मनाजिर। एक तरफ लेडी रीडिंग अस्पताल के ये मनाजिर हैं जहां पर जख्मियों की मुंतकली का सिलसिला जारी है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जिनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो अपने प्यारों की तलाश में यहाँ तक पहुँचे हैं, और आवाम भी अस्पताल का रुख कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खून के एहतियात देकर जानी नुकसान से बचा जा सके। जबकि दूसरी जानिब आप मस्जिद के मनाजिर देख रहे हैं जहाँ पर धमाका हुआ है। पुलिस लाइन पेशावर में मस्जिद के अंदर धमाका हुआ, और जहाँ पर नमाज जारी थी, सफ़े बंदी हुई थी,
नमाज ज़ोहर शुरू हो चुकी थी और ऐन उस वक्त ये खुदकुश धमाका हुआ। मस्जिद के मनाजिर आपको अंदर के दिखाए जा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि जा बजा सामान बिखरा पड़ा है, मलबा बिखरा पड़ा है और एक हिस्सा ऐसा है कि जो पूरा का पूरा मुनहदिम होता हुआ दिखाई दे रहा है कि पूरी छत जो है वो गिर चुकी है और आसमान नज़र आ रहा है। यानी इस शदीद नौयत का ये धमाका था कि जिससे मस्जिद के एक हिस्से की छत ही उड़ गई है और दीगर मलबा भी आप देख सकते हैं कि किस तरह मस्जिद में बिखरा पड़ा है और बड़ा नुकसान ये हुआ है। एक हिस्सा जो मस्जिद का है वो शहीद हो गया है मुकम्मल तौर पर। मलबा उठाने का काम जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। जोहर की नमाज के वक्त ये धमाका हुआ था और तकरीबन 3 घंटे का वक्त गुजर चुका है, उसके बावजूद भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका क्योंकि ज़ख्मियों की बड़ी तादाद थी, क्योंकि नमाजी ज़्यादा थे, ज़ख्मी ज़्यादा हुए और उसमें जाँ बहक अफराद की तादाद भी बतदरीज बढ़ती जा रही है। इमरान यूसुफजई हमें अपडेट कर रहे थे, दूसरी जानिब अब्दुल रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल रहमान, आप से भी तफसीलात जानेंगे। इमरान यूसुफजई साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है पूरे पेशावर में? इमरान यूसुफजई से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। पेशावर में पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश धमाका, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या रोनुमा हुआ है। खुदकुश धमाका हुआ है जिसमें एक बार फिर पूरी कौम सोगवार हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि ऐसे वाक़यात और सानेहात हुए जिसमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ और आज एक और इतना इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। खुदकुश धमाका जो कि पेशावर में पुलिस लाइन की मस्जिद में हुआ उस वक्त जब नमाजी नमाज ज़ोहर अदा कर रहे थे और एक बार फिर पूरी कौम जो है वो सोगवार हो गई है। पेशावर में घरों में सफ़े मातम बिछ गई है। 32 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं और कई ऐसे अफराद अभी भी हैं, कई ऐसे ज़ख्मी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इब्तदाई तौर पर जो तफसीलात आई थी उसमें 50 अफराद ज़ख्मी थे, लेकिन जैसे जैसे मलबे को हटाया जाता रहा, जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ने लगा, ज़ख्मियों की तादाद में इजाफा होता गया, मज़ीद नमाजियों को वहाँ से निकाला गया और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो कैजुअल्टीज़ या जो जाँ बहक होने की जो अफराद की तादाद थी वो भी बतदरीज बढ़ती गई। पहले 10, 12 और उसके बाद ये तादाद अब जाकर 28 से 32 तक जा पहुँची है और अभी भी अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक काफ़ी ऐसे अफराद मौजूद हैं, ज़ख्मी मौजूद हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पेशावर पुलिस लाइन में खुदकुश धमाका हुआ। धमाका तेज़ नौयत का था और इस धमाके के नतीजे में मस्जिद को भी बहुत नुकसान पहुंचा। एक हिस्सा मस्जिद का शहीद हो गया। इस वक्त GTV की स्क्रीन पर लाइव ये मनाजिर आप देख सकते हैं। GTV आपको दोनों तरफ के मनाजिर दिखा रहा है। एक तरफ तो लेडी रीडिंग अस्पताल है, जबकि दूसरी जानिब मस्जिद दिखाई जा रही है जहाँ पर धमाका हुआ है, जहाँ कुछ घंटों कबल सफ़े बंदी हुई थी, अब जगह जगह मलबा पड़ा हुआ है, शीशे टूटे हुए हैं और एक जो आप हिस्सा देख सकते हैं कि छत पूरी तरह से उड़ गई है एक हिस्से की और जो इतना मलबा था वो खासा भारी मलबा था जिसको क्लियर करने के लिए, मलबा हटाने के लिए बाकायदा हैवी मशीनरी भी तलब की गई और मलबे तले अभी भी लोगों के दबे होने की खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। मज़ीद अपडेट भी आपको देते रहेंगे। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। एक्सक्यूज मी, गाड़ी को पार्क करने के लिए एक बाइक को थोड़ा साइड पे करना है। वो ब्लू बाइक आपकी है क्या? नहीं। एक्सक्यूज मी, वो ब्लू बाइक आपकी है क्या? नहीं।
I wonder she's busy arranging something. Maybe she'll. हाय, वो 958 बाइक आपकी है? Excuse me. वो बाइक मेरी है. वक्त के साथ अगर सोच भी बदली जा सकती है तो व्हाई नॉट मेरी जान। अब करो नॉन स्टॉप वीडियो कॉलिंग, स्ट्रीमिंग एंड ब्राउजिंग। टेलीनॉर दे रहा है सिर्फ 350 रुपए में, कम में मोर से ज्यादा फायदा विद वीकली एक्सट्रीम ऑफर। 40 GB डेटा, 200 अदर नेटवर्क मिनट, 7,500 टेलीनॉर प्लस PTCL मिनट्स और SMS 7 दिन के लिए। अभी अपने करीबी रिटेलर या माय टेलीनॉर ऐप से ऑफर लगवाएं। Tap करो अपना easy पैसा वीजा डेबिट कार्ड and shop like a pro. Make your life easy, bro. जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग आवाज इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंसेज कराची यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा आला तालीम याफ्ता असातिज़ा की ज़ेर निगरानी 4 साला डिग्री प्रोग्राम, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद बैचलर ऑफ फिल्म ग्राफिक डिजाइन में 4 साला डिग्री प्रोग्राम का आगाज। बेहतरीन लैब से आरास्ता, शहर फैसल नर्सरी के करीब, फिर देर किस बात की। आवाज इंस्टीट्यूट में दाखिले जारी हैं। Tap करो अपना easy पैसा वीजा डेबिट कार्ड and shop like a pro. Make your life easy, bro. वीकली एक्सट्रीम ऑफर, 40 GB डेटा, 200 अदर नेटवर्क मिनट, 7,500 टेलीनॉर प्लस PTCL मिनट्स और SMS 7 दिन के लिए। Babylon, a project by Imarat Group of Companies. कैश का क्या करें? छोड़ो कैश वॉलेट को, बस इजी पैसा से स्कैन करो वीजा QR लाइक अ प्रो, क्योंकि पेमेंट सेकंड्स में करना इज इजी, ब्रो। वीकली एक्सट्रीम ऑफर, 40 GB डेटा, 200 अदर नेटवर्क मिनट, 7,500 टेलीनॉर प्लस PTCL मिनट्स और SMS 7 दिन के लिए। जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग आवाज इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंसेज कराची यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा आला तालीम याफ्ता असातिज़ा की ज़ेर निगरानी 4 साला डिग्री प्रोग्राम, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद बैचलर ऑफ फिल्म ग्राफिक डिजाइन में 4 साला डिग्री प्रोग्राम का आगाज। बेहतरीन लैब से आरास्ता, शहर फैसल नर्सरी के करीब, फिर देर किस बात की। आवाज इंस्टीट्यूट में दाखिले जारी हैं। कैश का क्या करें? छोड़ो कैश वॉलेट को, बस इजी पैसा से स्कैन करो वीजा QR लाइक अ प्रो, क्योंकि पेमेंट सेकंड्स में करना इज इजी, ब्रो। वीकली एक्सट्रीम ऑफर, 40 GB डेटा, 200 अदर नेटवर्क मिनट, 7,500 टेलीनॉर